factors affecting vegetation or the ecological factors. The term environment means surroundings. Any external force, substance, or condition which surrounds and affects the life of an organism in any way becomes a factor of its environment. कोई भी बाह्य बल, परिस्थिति या पदार्थ जो जीव को चारों ओर से घेरे रहता है तथा उसके जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, वह इकोलॉजिकल फैक्टर या पारिस्थितिकीय कारक कहलाता है। जो कारक जीव की वृद्धि एवं वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं वे डायरेक्ट इकोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं, जैसे कि मृदा, जल, प्रकाश या सॉइल, वाटर एंड लाइट। और जो कारक जीव की वृद्धि एवं वितरण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं वे इनडायरेक्ट इकोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं, जैसे कि टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। अधिकतर इकोलॉजिस्ट ने इकोलॉजिकल फैक्टर्स को 4 कैटेगरीज में विभाजित किया है, जो कि इस प्रकार से हैं: क्लाइमेटिक और एरियल फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स, थर्ड इज टोपोग्राफिक फैक्टर्स, and fourth is biotic factor. Now coming on to the first category, the climatic factors, या जिन्हें हम एरियल फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। These include light, temperature, rainfall, humidity and atmosphere. First of all, we'll start with light as the climatic factor. Light is well known for its effect on various physiological processes of plants such as photosynthesis, transpiration, seed germination, flowering, etc., thus playing an important role in the species composition and development of vegetation. The light intensity reaching the Earth's surface is influenced by various factors, जैसे कि एटमॉस्फेयर, दूसरा सस्पेंडेड पार्टिकल्स सच एज सॉलिड पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक, तीसरा वाटर लेयर्स, चौथा लेयर्स ऑफ वेजिटेशन एंड पांचवा टोपोग्राफिक फैक्टर्स। द लेयर्स ऑफ वेजिटेशन bring about variations in light intensities. The amount of light reaching the forest floor depends upon the height of the canopy, the crown development of the trees, and the age of trees. Thus, in a forest, the tallest trees receive full insolation. Under shrubs या झाड़ियाँ, they receive subdued illumination, and herbs या उनसे भी जो छोटे होते हैं, शाक, especially epigenous cryptogams, grow in weaker light conditions. Salisbury showed that light intensities govern the development of ground flora of a forest. प्रकाश की तीव्रता तलीय फ्लोरा को नियंत्रित करती है किसी भी वन में। Layers of water also have pronounced effect on light intensities. पानी में light penetration depends upon the turbidity, solute content, motion, and planktonic growth of the water. The intensity of light decreases successively with increasing depth. इस प्रकार प्लांट कम्युनिटी में प्रकाश की उचित मात्रा ग्रहण करने के लिए पौधे विभिन्न स्तरों में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे हम स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन या वनस्पति का स्तरीकरण कहते हैं। Now coming to effects of light on plants. प्लांट्स पर लाइट के इफ़ेक्ट्स कई प्रकार से होते हैं, जिसमें से प्रमुख जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, क्लोरोफिल प्रोडक्शन या क्लोरोफिल का उत्पादन। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स नीड लाइट फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन। On this photosynthetic activity depends the existence of other forms of life. In photosynthesis, visible spectrum which ranges from red and blue lights, it is the most effective, while in green light
photosynthesis is negligible. The rate of photosynthesis depends on the intensity of light. It grows on increasing with the increase in intensity till another factors become limiting. यदि प्रकाश की तीव्रता इतनी कम है कि केवल उतना ही भोजन संश्लेषित हो जितना कि श्वसन में क्षय हो रहा है, ये अवस्था कंपनसेशन पॉइंट कहलाती है. Now coming on to second point of the effect of light on plants, the overall vegetative development of the plant parts. Sometimes plants are classified ecologically on the basis of their relative light requirements. उनकी आपेक्षिक प्रकाश की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस आधार पर प्लांट्स को डिस्क्राइब किया जाता है. हीलियोफाइट्स वो प्लांट्स हैं विच ग्रो बेस्ट इन फुल सनलाइट, जो कि अधिक प्रकाश की तीव्रता में अच्छे से उगते हैं, या हम कह सकते हैं कि हायर लाइट इंटेंसिटीज़ में उनकी ग्रोथ सबसे अधिक होती है. दूसरे प्रकार के प्लांट्स हैं सायोफाइट्स विच ग्रो बेस्ट एट लो लाइट इंटेंसिटीज़, या वो कम प्रकाश या छाया में अच्छी वृद्धि करते हैं. इसी में सम हीलियोफाइट्स विच ग्रो बेस्ट इन सन बट कैन ग्रो फेयरली वेल अंडर शेड आर कॉल्ड फैकल्टेटिव सायोफाइट्स. या हम कह सकते हैं वो हीलियोफाइट्स जिनके पास ये विकल्प है कि वो छाया में भी अच्छी ग्रोथ कर सकें, वो कहलाते हैं विकल्पी सायोफाइट्स. एक्चुअल में वो क्या हैं? हीलियोफाइट्स ही हैं. देन दोज हीलियोफाइट्स विच ग्रो ओनली इन लाइट आर नोन एज ऑब्लिगेट हीलियोफाइट्स, अर्थात उनके पास में कोई विकल्प नहीं है, वो अविकल्पी हीलियोफाइट्स कहलाते हैं. उसी प्रकार से हम कह सकते हैं फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स वो हैं जो कि विच ग्रो बेस्ट एट लोअर लाइट इंटेंसिटीज बट कैन ऑल्सो ग्रो इन फुल सनलाइट. उसी प्रकार से सायोफाइट्स जो सिर्फ शेड में ही उग सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑब्लिगेट सायोफाइट्स या अविकल्पी सायोफाइट्स. नाउ द थर्ड इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन. Light affects respiration indirectly. With the increase in light intensities, the rate of respiration increases in many plants. क्यों? This is due to the effect of light on permeability of cell membrane and viscosity of protoplasm, both of which increase to some extent with increasing light. Now coming on to effect of light on flowering या photoperiodism. Photoperiodism has a pronounced effect on the vegetative growth as well as flowering of the plants. फ्लावरिंग के लिए आवश्यक है एक दैनिक प्रकाश की निश्चित समयावधि, जिसे हम क्रिटिकल फोटो पीरियड या निर्णायक दीप्ति काल के नाम से जानते हैं. इस आधार पर प्लांट्स 3 प्रकार के हो सकते हैं. शॉर्ट डे प्लांट्स जो कि अल्प प्रकाशीय पौधे कहलाते हैं. They develop normally only when the photo period is less than a critical, जिसे कि हम 12 से 14 घंटे मान सकते हैं. तो शॉर्ट डे प्लांट्स वो हुए जिनको कि कम अवधि के दीप्ति काल की आवश्यकता होती है. एग्जाम्पल धतूरा स्ट्रेमोनियम, सेल्विया स्प्लेंडेंस, कैनबिस सटाइवा, कॉस्मोस एट्सेट्रा. सेकेंड कैटेगरी में लॉन्ग डे प्लांट्स जो कि दीर्घ प्रकाशीय पौधे कहलाते हैं. दे डिमांड अ फोटो पीरियड इन एक्सेस ऑफ अ क्रिटिकल मिनिमम. निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक अवधि के दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है इन प्लांट्स को, जैसे कि एग्जाम्पल सोलनम ट्यूबरोसम, रेफेनस सटाइवस, ब्रेसिका रेपा, सॉर्गम वल्गेर एट्सेट्रा. तीसरी कैटेगरी में आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स या प्रकाश अप्रभावी पौधे. सम प्लांट्स आर इनडिफरेंट टू अबव कंडीशंस. इनमें दीप्ति काल का कोई प्रभाव नहीं होता या ये उदासीन या न्यूट्रल होते हैं टू द क्रिटिकल फोटो पीरियड, जैसे कि गॉसिपियम हिरसुटम, निकोटियाना टबैकम, क्यूक्यूमिस सटाइवस एंड लाइकोपर्सिकॉन. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट
effect, that is on the distribution of plants, पौधों का वितरण. The total amount of radiation received by the earth's surface differs with latitude, या हम कह सकते हैं distance from the equator. Light conditions at poles are different, which is the reason for the difference in vegetation at poles and other parts of the world. जब हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो लाइट कंडीशंस धीरे धीरे बदलती रहती हैं, और इसी प्रकार से हम देखते हैं लाइट कंडीशंस के साथ ही वहाँ की वेजिटेशन भी उसके साथ ही प्रभावित होती है. ये इफ़ेक्ट हम टेम्परेचर के साथ में भी एलैबोरेट रूप में ले लेंगे. देन नेक्स्ट इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन रेट. लाइट अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन रेट्स इनडायरेक्टली थ्रू इंक्रीज इन द temperature. Transpiration rates affect water absorption also. Thus, high light intensities are associated with dry habitats and high transpiration rate. The stomatal movement, that is the opening and closing of stomata, is also regulated by light. Thus, we can say transpiration and absorption are related to light. That's all about the effects of light on